Australian skilled immigration? बेसिकली स्किल माइग्रेशन के बाद आपके पास एक प्रॉपर स्टेटस होता है एज अ परमानेंट रेजिडेंस, फिर आप मूव करते हो टूवर्ड्स सिटीजनशिप। ऑस्ट्रेलिया रेगुलरली एक लिस्ट अपडेट करता है। देयर आर 2 to 3 काइंड्स ऑफ लिस्ट। सो इन दीज लिस्ट वो बेसिकली रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं कि कौन सी ऑक्यूपेशन वहाँ पे उनको रिक्वायर्ड है। स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? स्किल माइग्रेशन के लिए फॉर ईच एप्लीकेंट, प्राइमरी एप्लीकेंट, आपके पास एटलीस्ट 65 पॉइंट्स होने चाहिए। कुछ अर्सा आप वहाँ पे स्पेंड करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करें, तो आपको अल्टीमेटली पीआर मिल जाता है। सो लाइक डायरेक्ट पीआर तो है, बट इन केस आपको डायरेक्ट पीआर नहीं भी मिला तो अल्टीमेटली एक पाथवे है पीआर की तरफ, फ्रॉम टेम्परेरी रेजिडेंस टू परमानेंट रेजिडेंस। Hello viewers, this is Mahayas. I'm elated to welcome you guys back again to another episode. Are you one of those जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं? But what is the criteria and what are the major concerns that come to your mind when you talk about Australia? Like eligibility criteria, PR duration and kind of immigration. So इस purpose के लिए today I have invited Miss Komal, who is one of the managers of Hypro Law Associates. So let's talk to her. Hello Komal. Hi Maha, how are you? I'm doing great. How are you? I'm good, thanks for asking. Okay. Well, I have a list of questions जो कि मेरी audience आपसे पूछना चाहती है. So we requested you to come here today and answer our queries. अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं, what is Australian skilled immigration? Australian skilled immigration basically it's a stream of 3 subclasses. Okay, either of these subclasses they either lead you to the permanent residency or it provides a pathway to permanent residency. Basically skill migration के बाद आपके पास एक proper status होता है as a permanent residence, फिर आप move करते हो towards citizenship, और ये कि आपके पास एक लीगल वर्किंग राइट्स होते हैं, कंप्लीट वर्किंग राइट्स, लिविंग राइट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स दैट अ परमानेंट रेजिडेंट और अ सिटीजन हैव्स इन ऑस्ट्रेलिया. So skill migration is the name of that pathway. We also call it general skill migration. Okay. So what is the eligibility criteria? Like आप किस तरह assess करते हैं कि कोई individual जो है वो eligible है Australian immigration के लिए कि नहीं? मतलब what is the criteria for that? There are a number of criterias. It depends on your occupation and on your specific profile. But if we talk about the general criteria, तो उनमें कुछ main factors होते हैं, like your age. You should be above 18 years and below 45 years of age, and after that you should have a recognized degree and relevant experience, and you must also prove your English proficiency, and you can appear in various test forms that are available. So these are some basic criteria. Okay, so ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कौन कौन से occupations हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है? ऑस्ट्रेलिया रेगुलरली एक लिस्ट अपडेट करता है. देयर आर 2 to 3 काइंड्स ऑफ लिस्ट: मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, शॉर्ट टर्म ऑक्यूपेशन लिस्ट एंड रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट. सो इन दीज लिस्ट वो बेसिकली रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं कि कौन सी ऑक्यूपेशन वहाँ पे उनको रिक्वायर्ड है और किन ऑक्यूपेशंस को वो ग्लैडली अपने पास इन्वाइट करेंगे. तो इफ़ वी लुक एट दोज लिस्ट, उनमें से जो मेजर चंक है, जो मेजर ऑक्यूपेशंस इन्वाइट होती हैं, दे आर mostly from healthcare department. They are from engineering, they are early childhood teachers and carpenters and construction industry. So these are some major workforces that are in shortage in Australia, और Australia इन industries को focus करता है mostly for skill migration और इनको invite करता है. Sounds good. Skill assessment कैसे करते हैं आप? That's a very good question. Basically skill migration का जो first step है in itself, it is skill assessment. Okay. Skill assessment में basically जो Australian bodies हैं, they are designated Australian bodies for specific occupations. तो वो जो assessing bodies हैं basically वो आपकी eligibility check करते हैं. For example, you have made a claim कि आपकी जो occupation है और जो आपका experience है, they are suitable for any occupation in Australia. जैसे engineer, आप क्लेम करते हैं कि जो आपकी डिग्री है और आपका एक्सपीरियंस है वो सूटेबल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट हाउ like there is no official or authenticate document for you. So उस केस में क्या होता है, जो असेसिंग बॉडी होती है वो आपके क्लेम्स को वैलिडेट करती है. उन वैलिडेशन के लिए वो आपसे डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स मंगवाती है, और फिर जो असेसिंग बॉडी है दे आर अफिलिएटेड विद गवर्नमेंट, लाइक वो गवर्नमेंट के अंडर ही प्रोसीड कर रही हैं वहाँ पे. तो जो असेसिंग बॉडी होती है वो आपकी एजुकेशन, आपकी एक्सपीरियंस एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडेंटिटीज़ उनको रिकॉग्नाइज करती है. एंड देन वंस यू हैव प्रूव्ड कि आपकी प्रोफाइल सूटेबल है, यू मीट ऑल द क्राइटेरिया, दे गिव यू अ पॉजिटिव आउटकम. When you get the positive outcome, it means that you are eligible for general skill migration, and then you can proceed further. Alright. एक term है बहुत ज़्यादा वायरल आजकल, मतलब I don't exactly know what is that. What is state sponsorship? Like ये क्या होता है? Basically state sponsorship. If we talk about these subclasses, there are three subclasses for general skill migration. One is skill independent subclass.
इन दिस सब क्लास आपको जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इनवाइट करती है अपने पास. एंड द रेस्ट ऑफ द टू सब क्लासेस 190 एंड 491 दे आर स्टेट स्पॉन्सरशिप्स. बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने स्टेट स्पॉन्सरशिप इंट्रोड्यूस करवाया था. और इसके बाद ये था कि जो स्टेट्स थी दे कैन डायरेक्टली नॉमिनेट अ पर्सन. इवन टेरिटरीज, जो स्टेट्स एंड टेरिटरीज है वहाँ पे, वो डायरेक्टली एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन को जिनकी उनके पास शॉर्टेज है उनको इनवाइट करते हैं अपने पास, ताकि उनकी जो ऑक्यूपेशन की शॉर्टेज है वो मीट हो सके और जो वहाँ पे वर्क फोर्स है उसमें बैलेंस आ सके. बेसिकली इन स्टेट स्पॉन्सरशिप स्टेट और टेरिटरीज आपको डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं, आपको इन्वाइट करते हैं कि योर ऑक्यूपेशन इज़ इन डिमांड इन आर टेरिटरी, इन आर स्टेट, इन आर रीजन्स. और फिर वो आपको परमानेंट रेजिडेंसी प्रोवाइड करती हैं. आइदर वो आपको परमानेंट रेजिडेंसी प्रोवाइड करती हैं इन केस ऑफ 190, या फिर वो आपको 5 ईयर का TR देती है, टेम्प्रेरी रेजिडेंस. एंड देन आफ्टर TR कुछ अर्सा वहाँ पे स्पेंड करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करें, तो आपको अल्टीमेटली PR मिल जाता है. सो लाइक डायरेक्ट PR तो है, बट इन केस आपको डायरेक्ट PR नहीं भी मिला तो अल्टीमेटली एक पाथवे है PR की तरफ, फ्रॉम टेम्प्रेरी रेजिडेंस टू परमानेंट रेजिडेंस. इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? क्योंकि मैंने सुना है बहुत मुश्किल होता है इसको पास करना है. सो व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स वी नीड? इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट ऑनेस्टली, बट ये कि येस आपके लिए कुछ हद तक डिफिकल्ट हो सकते हैं कुछ एप्लीकेंट्स के लिए जिनका रेगुलरली यूज नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में. सो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने उनकी एक रिक्वायरमेंट है, दे आर काइंड ऑफ मैंडेटरी. आपको वो रिक्वायरमेंट्स पास करना ही है फॉर मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस. जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हैं, यू मस्ट बी एट अ कम्पिटेंट लेवल. लाइक जो आपकी प्रोफिशिएंसी है वो कम्पिटेंट लेवल होने पे चाहिए. इसके लिए डिफरेंट टेस्ट हैं जिनमें आप अपीयर हो सकते हैं उनको प्रूव करने के लिए. एंड देन फॉर सम ऑक्यूपेशन स्पेशली हेल्थ केयर, उसमें आपके पास जो प्रोफिशिएंसी लेवल होना चाहिए इट शुड बी एट सुपीरियर लेवल. एंड देन ये वेरी करता है फ्रॉम ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन, बट मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन इफ़ यू आर ऑन अ कम्पिटेंट लेवल आपको जो है प्रोफिशिएंसी एक्सेप्ट हो जाएगी. बट अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के थ्रू पॉइंट्स गेन करना चाहते हैं तो यू कैन डू बेटर इन द प्रोफिशिएंट एंड सुपीरियर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट. ओके, सो अभी आपने बात की है पॉइंट्स की, तो हमें स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? स्किल माइग्रेशन के लिए फॉर ईच एप्लीकेंट, प्राइमरी एप्लीकेंट, आपके पास एटलीस्ट 65 पॉइंट्स होने चाहिए. ये पॉइंट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं. लाइक आई मेंशन बिफोर, आपकी एज है, आपकी एजुकेशन है, आपके एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन है, इवन योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज. तो ऑल दीज फैक्टर्स दे आर कंसीडर्ड और फिर उसकी बेसिस पे आपको पॉइंट्स अवार्ड होते हैं. एंड टू बी एलिजिबल यू शुड हैव एटलीस्ट 65 पॉइंट्स. फिर उसके बाद आपके पॉइंट्स जितने बेहतर होंगे आपके उतने ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं इन्विटेशंस के लिए. Okay. So Komal, can I include my family in the application? येस डेफिनेटली. एट द टाइम लाइक जब आप अपने एक्सप्रेशन मेक कर रहे होते हो, एक्सप्रेशन की प्रोफाइल आपकी जब क्रिएट हो रही होती है, तो उस पॉइंट पे ही आप आपकी फैमिली ऐड कर देते हैं. एंड मोस्टली ये कि आप इसमें अपनी इमीडिएट फैमिली ऐड कर सकते हैं, लाइक योर स्पाउस एंड बेबीज़. तो आपकी जो इमीडिएट फैमिली है दे गो एट द सेम टाइम विद यू. And what is the age limit for kids? देयर इज़ नो एज सच एज लिमिट. बच्चों के लिए कोई एज लिमिट नहीं है. जस्ट पेरेंट्स को अगर वीज़ा ग्रांट हो गए तो दे कैन गो विद देयर पेरेंट्स. कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है स्पेसिफिक लाइक हेल्थ की, करेक्टर की, तो वो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स को मीट करना होती हैं. इफ़ दे पास देम दे कैन गो. And what about the parents? Can I include my parents in that? ये थोड़ा सा टैकी है बिकॉज यू कैन नॉट इमीडिएटली ब्रिंग योर पेरेंट्स विद यू. लाइक आप एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन आप उनको इंक्लूड नहीं कर सकते, उनको साथ नहीं ले जा सकते. बट वंस यू गेट द PR देयर, आप वहाँ पे PR आपको मिल जाए, आपको सिटीजनशिप मिल जाए, आप एक लीगल स्टेटस पे रह रहे हो, एट दैट पॉइंट यू कैन इन्वाइट योर पेरेंट्स. आप उनको बुला सकते हैं अपने पास. Okay. Okay, so the major question arises here कि skilled immigration के लिए processing time कितना होता है? यूजली जो प्रोसेसिंग टाइम है ये वेरी करता है फ्रॉम ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन. और फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने कितनी जल्दी उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं. बट इफ़ वी टॉक अबाउट ऑन एवरेज इट कैन टेक यू एनीवेयर बिटवीन 1 year to 1.5 years. इस ड्यूरेशन के दौरान लाइक इतना टाइम आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए बिकॉज इट्स इमिग्रेशन एंड PR. तो ये कि इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है बट अल्टीमेटली आपको PR मिल जाता है. So Komal, I really appreciate your efforts for bringing time for us and answering all these queries. And to my audience, if you guys need more information regarding skilled immigration, so you can contact Hybro for free consultation. Stay tuned for more information. Thank you.